extended for a further period of 120 days under Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan do not contain any provision relating to punishment which cannot be inflicted retrospectively under Article 12 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Since there is many precedents available regarding enforcement of laws respectively which do not certain provision relating to punishment. Therefore, there is no embargo in extension of these ordinances by the National Assembly retrospectively. Even otherwise, the resolution for extension of ordinances have been placed in the order of the day since the commencement of current session. However, could not be taken up due to adjournment of the sitting without transaction of business due to lack of quorum or otherwise. Therefore, I had the objection out of order and allowed the extension of the ordinance retrospectively by the National Assembly. जी ख्वाजा साहब ये अपना काउंट कर तो आपका अपनी जगह में काउंट करता हूँ ना आप जाए ना अपनी सीट पे काउंट में करता हूँ अपनी सीट पे खड़े हो जाए काउंट करता हूँ इसके बाद जी now I put the resolution to the house. It has been moved the National Assembly. Item number 6. Now I put the resolution to the house. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the election third amendment ordinance 2021 to 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of class 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution में से आए, all those अगर से no, खड़े हो जाए अपनी सीट पे, जाओ ना अपने लोगों को. Count be made please. आप चैलेंज करें ना, उधर से चैलेंज करें तब होगा ना जी. आइटम नंबर 6 पर आप वोटिंग चैलेंज करते हैं नवीद कमर साहब आप चैलेंज करते हैं सर हम अपोज कर रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं हाँ काउंट बी मेड प्लीज ऑल दोज इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में स्टैंड राइज ऑन द सीट ओके आप अपोज कर रहे हैं और सिर्फ अपोज कर रहे हैं चलो आगे जाए All those in favor of the resolution में से आए, all those say no. I think I have it because the resolution is adopted. Item number 7. Dr. Mohammad Farooq Naseem साहब तशरीफ रखे भाई तशरीफ रखे Farooq Naseem साहब please Farooq Naseem साहब बाबर अवान साहब Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 7 that the National Assembly resolves to extend the public properties removal of the encroachment ordinance 2021 ordinance number 27 Roman of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A or clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to your house. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the public properties removal of encroachment ordinance 2021, 16 of 2021 for the further period of 120 days with effect of 22nd December 2020 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of class 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. Item number 8. Babar Awan Sahab, please. Babar Awan Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. I move item number 8 that the National Assembly resolves to extend the regulation of generation, transmission and distribution of the electric power amendment ordinance 2021, ordinance 27 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021. Order in the House, please. Order in the House, please. To subparagraph Roman 2. Order in the House, please. Small a of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to your house. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the resolution of
Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Amendment Ordinance 17 of 2001 for the further period of 120 days with effect of December. Under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it, in considering the resolution is adopted. Ji. Shazia Marie. Challenge kar rahe? Sir, I challenge the vote. Count should be made. हाँ, ये चैलेंज वोट चैलेंज किया गया है. जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. जो सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट बी मेड. अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. काउंट हो रही है. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं जहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है. एक जानिब आप देख सकते हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली के इस इजलास में शोर शराबा भी किया जा रहा है. जो रेजोल्यूशन के हक में है वो अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. बाकी भाई से आप तशरीफ रखें प्लीज. अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. अपनी टीम खड़ी करोगे. जी सर. शायद थोड़ी देर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम. 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी. हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे. नाज़रीन, हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है, मगर हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं. वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लियामेंट हाउस पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू. बोले, कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है. नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गया तब भी यही कहा जाता था, जब तक समझौता नहीं होता वापस नहीं आएगा. जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, नौकरी की दरख्वास्त होती है. कई दफा तुमने कहा कि हुकूमत मुश्किल में है. हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है. ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है. जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है. वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास खत्म हो गया. काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी. ज़रा के मुताबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने IT से मुतल्लिक आलात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स की मुखालिफत की. मिनी बजट आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा. कौमी असम्बली इजलास से पहले ही हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें 110 अरकान मौजूद हैं, जिन्हें बिल के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है और मंजूरी के लिए लायहा अमल तैयार किया जा रहा है. मज़ीद जाने की नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं. फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, वफाकी काबीना का तो इजलास ख़त्म हो गया, इस इजलास मुतालिक हमें बताइएगा. जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ. इस इजलास में फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी गई. ज़राए बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से इजलास में अपने खदशात जो हैं वो काबीना के सामने रखे गए. वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने खदशात वज़ीर आज़म के सामने रखे. उन्होंने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उसकी मुखालफत करते हैं. IT से मुताल्लिक़ आलात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स की मुखालफत की जाएगी. वज़ीर आज़म ने
वफाकी वज़ीर अमीन अल्लाह के खदशात को सुना और इस तरह वज़ीर को कमेटी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में इजलास में जब मंजूरी दी गई उसके बाद तहरीक इंसाफ विकास ने बापू की तालीमानी पार्टी की इजलास पार्लियामेंट हाउस जारी है, जिसमें वज़ीर ख़ाना शाहीन तनाज़ बिल के ऊपर अराकीन को इत्मीनान में ले रहे हैं और तमाम जो अराकीन की जा रही हैं बजट के अंदर वो भी दी जा रही है। इजलास के बाद का इजलास शुरू होगा जिसमें तनाज़ पेश किया जाए। सही ब्रीफिंग भी दी जा रही है और लाइहमल तैयार किया जा रहा है। फ़हीम अख्तर आगा कहते हैं, आपका शुक्रिया। और कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट के दौरान अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। अपोजिशन का मिनी बजट के दौरान बाजू पर स्याहपट्टियां बांधकर एहतजाज करने का फैसला भी सामने आया है। अपोजिशन का इजलास के दौरान बायकॉट करने या ना करने से मुतल्लिक मुशावरत जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना असद महमूद शरीक नहीं हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो कौमी असम्बली में अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जब मुश्तरका अपोजिशन का इजलास जो उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत जो है वो मुश्तरका तौर पर मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान जो हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त इजलास में जो इजलास में फैसला किया गया है अपोजिशन की तरफ से वो हमारी तक इतलात मौसूल हुई है। उसमें बजट में अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया है, जबकि अपोजिशन का मनी बजट के दौरान बाजुओं पर स्याहपट्टियां बांध कर जो है वो इजलास में शिरकत करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ अपोजिशन ने अभी की मशावरत जारी है कि इजलास में के दौरान बाईकाट करना है या नहीं करना है, या इजलास के दौरान ही अंदर रह कर जो है वो एहतजाज करना है या स्पीकर डाइस का घिराव करना है। इस हवाले से भी मुशावरत जारी है। इस वक्त तमाम अरकान जो है वो तकरीबन पहुंच चुके हैं मुश्तरका अपोजिशन के। इसके अलावा मौलाना असद। ठीक है, राना तारिक हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है पाकिस्तान को गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। बतौर अपोजिशन इस तरह की हर कोशिश को रोकेंगे। रियासत को कर्जों से निजात दिलानी है। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की रियासत को किस तरीके से इन कर्जों के बोझों से या इन ऊपर जो बाहर का जो डिक्टेशन है इनके लेने से रोके। ये तो पाकिस्तान को गिरवी बनाने की पूरी कोशिश है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन किस्म के लेजिस्लेशन को रोकें जिसमें पाकिस्तान की रियासत को। और नाज़रीन, मिनी बजट में टैक्स छूट खत्म और नए ज़ाब्ते लागू होंगे। FBR ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा 17% टैक्स आयद होगा। सोने चांदी पर टैक्स 1% से 17% किया जाएगा, जबकि परचून फरोशों का टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। ऑयल सीड की दरामद पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17%, मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा 17%, साशे में फ़रोख्त होने वाली अशिया का टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% और पोस्ट के ज़रिए पैकेट इरसाल करने पर 17% सेल्स टैक्स लगेगा। मिनी बजट में टैक्स छूट खत्म और नए ज़ाब्ते लागू होंगे। FBR ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा 17% टैक्स आयद होगा। सोने चांदी पर टैक्स 1% से 17% किया जाएगा, जबकि परचून फरोशों का टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। ऑयल सीड की दरामद पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17%, मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा 17%, साशे में फ़रोख्त होने वाली अशिया का टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है 74 साल में आवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए, गरीब ने तो सिर्फ ख्वाब में ही ज़िंदगी गुजारी है। फिलहाल रियासत की बुनियाद रख दी गई है, लीडर सिर्फ एक ही है, वो है सिर्फ इमरान खान। कर्जा लेने वाले इमरान खान की हुकूमत के लिए दुआ करें। तकरीबन 74 साल हो गए हैं हमें आज़ादी मिले हुए और हमारे गरीब अवाम को ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। निचले तबके में खुशहाली जब आएगी तो फिर सही पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त हम कह सकेंगे कि कायदे आज़म का पाकिस्तान आज बना है। जो लीडर है वो एक ही है और उसका नाम है इमरान खान। अगर जब आपको लोन मिले तो पहले तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें,
پھر عمران خان کے لیے دعا کریں، اس کی حکومت کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ سیرا انہی کے سر پہ ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہے ہیں، کوئی ایسا قانون نہیں جس کے تحت نیب رقم خزانے میں جمع کرانے کا پابند ہو۔ تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو نیب کو مجبور کرے کہ جی آپ نے یہ جو ریکوری کی ہے آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ اس میں حکومت کا حق نہیں ہے۔ حق اس میں صرف ان متاثرین کا ہے، ان مستحقین کا ہے جن کی حلال کی یہ کمائی تھی۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز رجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ نیب کی ہر کاوش کی تعریف نہیں کر سکتے تو بے شک تنقید کریں، لیکن تنقید شواہد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ریکارڈ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی۔ کراچی میں اے وی ایل سی کے اہلکار خود جرائم میں ملوث نکلے۔ اے وی ایل سی نے سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ اہلکاروں سے چوری کی گئی 8 کاریں اور 3 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے نمائندہ خصوصی عارف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف محمود، آگاہ کیجیے گا ان 4 سب انسپیکٹر۔ اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا، کیونکہ یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے؟ کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینے سے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ بس اب حکومت، اب عمران خان گیا، ابھی جو ہے ان کے آخری دن آ گئے۔ سر انہوں نے عوام کو کیا موبلائز کرنا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف 3 ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ اپنے بندوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے، انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے؟ پھر انہوں نے بات کی قومی سلامتی کی۔ سر یہ دیکھیں واقعی میں بہت صحیح بات کی، بھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی، بڑا اچھی بات کی کسی نے۔ سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت جن کے وزیر اعظم، جن کے وزیر دفاع اور پتہ نہیں کون سے وزیر کوئی مالی کے احکامے پہ، کوئی دھوبی کے احکامے پہ، کوئی نائی کے احکامے پہ باہر نوکریاں کرتے تھے، وہ ہمیں درس دے رہے قومی سلامتی کا۔ جو مودی کو، جو مسلمانوں کے خون کرنے والے نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، ان کو نہیں بلایا تھا۔ یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہے نا، ان کو نہیں بلایا تھا، بلایا کس کو؟ مودی کو۔ ساڑیاں بھجوائیں، تحفے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے سر۔ اچھا سر، پھر یہ کہہ رہے تھے، ابھی ڈرا رہے ہیں قوم کو، اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آئے گا تباہی آ جائے گی ملک کو۔ مجھے پتہ کیا یاد آ گیا اسپیکر صاحب، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے دنیا میں کرونا آ گیا، پاکستان میں بھی کرونا آ گیا، تو ایک صاحب اچھے بھلے، ایک سے بات اچھے بھلے بھاگے ہوئے تھے، ملک سے بھاگ کے لندن میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھاگے واپس آئے، اپنا ریزیومے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا، جاب اپلیکیشن انہوں نے اپ ڈیٹ کی، اور ادھر آ کے انہوں نے لہرانا شروع کر دیا، میں بچاؤں گا۔ وہ کدھر ہے؟ سر فرق ان میں اور ہم نے یہ ہے، صرف سادہ سا فرق ہے، یہ ڈینگی پہ کام کرتے ہیں، بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکالنے پڑتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتی ہیں۔ ہم کووڈ پہ بات کام کرتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ فورم ہماری تعریف کرتا ہے، ورلڈ اکنامک فورم ہماری تعریف کرتا ہے، نارمل سی انڈیکس اکانومسٹ میگزین کا کہتا ہے دنیا میں نمبر 1 پاکستان ہے، دنیا تعریف کرتی ہے۔ پھر انہوں نے بولا سر پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے؟ پچھلے سروے کے اندر 86% پاکستان نے کہا، 86% پاکستان نے، وفاقی حکومت نے کورونا کے اندر اچھی کارکردگی دکھائی ہے، یہ کہہ رہے پاکستان کے عوام۔ پھر انہوں نے بات کی کہ
پبلک یہ جو آرڈیننس جس کی بات کر رہے ہیں سر نااہل حکومتیں 5 سال انہوں نے گزارے، 5 سال انہوں نے گزارے، یہ ادارہ ان کے بھی نیچے تھا، 5 سال انہوں نے 10 سال میں اسپیکر صاحب 1 روپے کا ترقیاتی بجٹ اس ادارے سے نہیں کروا سکے، 1 روپے کا۔ الحمدللہ پچھلے 4 مہینے کے اندر 400 ارب روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹس کی اسی ادارے نے منظوری کرائی ہے، اور 600 ارب روپے کی اگلے 6 ماہ میں کرانے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایکسپائرڈ آرڈیننس کی بات کی، بڑی ٹیکنیکل بات کی۔ سر میں بھی آپ سے اسپیکر صاحب ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپائرڈ آرڈیننس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایکسپائرڈ سیاست دان ہیں ان کی تقریریں سننا ہم پہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا سر، یہ انہوں نے کے پی کے ریزلٹس کی بات کی، خیبر پختونخوا کے رزلٹ کی بات کی، وہ ادھر بیٹھے ہوئے مولانا کی پارٹی والے وہ بات کریں تو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں، یار ان کا کوئی وزن بنتا ہے، کسی وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کے اچھے رزلٹ آئے ہیں۔ سر یہ جو بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف اکیلے نے 15 تحصیلیں جیتی ہوئی ہیں ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو رزلٹ ابھی آنے والے ہیں یہ 20 سے اوپر چلی جائے گی۔ یہ سارے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی تینوں مل کے ٹوٹل 9 تحصیلیں جیت کے بیٹھے ہوئے، اکیلے تحریک انصاف سے کم۔ تو میری سر لیکن ہیں تو ہمارے ہی کولیگز اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ہاؤس کو ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ ان 3 جماعتوں کو جو دفنایا گیا ہے 40 دن کا سوگ ان کے لیے ضرور اعلان کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ وہی پارٹی ہے کہ جس کے لیڈر نے کھڑے ہو کر یہاں پر کہا کہ وہ پاکستان کا جس کو دنیا نے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کی طرف بھارت نے نظر اٹھانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو صرف جہاز گرا کر، قیدی بنا کر، چائے بنا کر، ذلیل کر کے واپس نہیں بھیجا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ 6 گنا بڑا ملک جو ہے ہم سے خوف زدہ ہے، اور ان کے لیڈر کہتے ہیں ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آج شرم کی انتہا ہوتی ہے، شرم کی انتہا ہوتی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لیڈر کھڑا ہو کے پاکستان کے سرنڈر کی بات کر رہا ہے۔ میں صرف اسی بات پہ بات اپنی ختم کروں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Coastal Research in Water Resources PCRWR Amendment Ordinance 2021-19 of 2020 for the further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. Item number 11. Saeed Pakri Bab Sahab. Saeed Pakri Bab Sahab. Item number 11. The Honourable Speaker, I hereby move that the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Pakistan Food Security Flow and Information Ordinance 2021, Ordinance number 21 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 7/1/2022 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the tax clause 3rd Amendment Ordinance 2021-22 of 2021 for the further period of 120 days with effect for 12 December 2022 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. جی
Item number 10, Shivji Parag Sahab. Baba Rawal Sahab, please. Baba Rawal Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the National Assembly may resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 29 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29 of December 2021 under proviso to subparagraph number 2 Roman of paragraph small a of clause 2 of the Constitution in terms of Article 89. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRW Amendment Ordinance 2021-19 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Item number 13. Ji Mian Najibuddin Awais Sahab. Ji. Ji. Item number 12. Mr. Shaukat Fayaz Tareen Sahab, please. Mr. Speaker, I'd like to move a resolve to extend the Tax Laws Amendment, Third Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 22 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 12/1/2022 under proviso to subpara 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the tax laws, Third Amendment Ordinance 2021-22 of 21 for the further period of 120 days with effect from 12 December 2022 under proviso to subparagraph 1 of paragraph A article of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी स्टैंडिंग कमेटी का कोई है इस पे? दे रहे फिक्र दे रहे जी नजीमुद्दीन अवैस साहब, अली नवाज अवार साहब, हाँ, सदाकत अब्बासी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी। कौमी असम्बली PPP की शगुफ्ता जमानी और PTI के रुकन गजाला सैफी में हाथापाई हुई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, इसी पर हम बात करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, आगाह कीजिए किस बात पर हाथापाई हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है स्पीकर कैसेस की जेर सदारत जारी है। इजलास में शनाख्त बिल के हवाले से और दीगर जो आर्डिनेंस हैं वो पेश किए जाएंगे। इसके हवाले से हम जो आज सबसे जो बुरी चीज़ जो गैर पार्लिमानी अंदाज में जो अंदाज से अख्तियार किया गया है, शगुफ्ता जमानी की जानिब से PTI की रुकन गजाला सैफी जो है उनको थप्पड़ मारा गया है, पर उन्होंने PTI के अरकान ने शदीद एहतजाज किया कि एक रुकन की जानिब से जो एहतजाज कर रहे हैं और उनको एहतजाज आएगा तो फिर हम आपको बात करने का मौका देंगे। वो ये बात करके चले गए। जब बिल आया तो आप तशरीफ ले आए और आपने हमें बात करने से रोक दिया। वो वक्त था कि हम बात करते। जनाब स्पीकर, एक तरीका तो ये है हाउस चलाने का जो अब चल रहा है जिस तरीके से आप कह सकते हैं जनाब कि हमारे पास 10-12 मेंबर्स की या 5-7 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, हम जैसे चाहें कानून साजी कर लें। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि कानून साजी कोई PTI के लिए नहीं हो रही।
कानून साजी कोई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई JUI के लिए नहीं हो रही, कोई मुस्लिम लीग N के लिए नहीं हो रही, कानून साजी आप कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए, और आने वाले वक्तों पर उसका इतलाक होगा। ये कैसा कानून साजी हम कर रहे हैं कि इस तरफ से वावेला हो रहा है कि आप हमारी बात तो सुने, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो है वो पार्लिमानी लीडर ने एक बात की, अब उसका जवाब ट्रेजरी बेंचों से क्या आया? जनाब स्पीकर, आप खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या कहा है असद उमर ने उसके जवाब में? असद उमर ने कोई जवाब दिया, किसी सवाल का जवाब दिया? क्या इस हाउस को वो मुतमईन कर सके? क्या आपकी ज़ाते गिरामी को वो मुतमईन कर सके? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, आप एक वजाहत करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो ये अमेंडमेंट्स आए हैं इसके ऊपर हम पूरा डिबेट करवाएंगे और वो सिर्फ रिकमेंडेशन आ जाएंगे तो सबको मौका मिलेगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हाउस का जो है वो माहौल खराब है, कभी भी नहीं चाहूंगा, लेकिन ये तो मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त का जो तौर तरीका है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है, वो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूं कि वो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं, आपको भी उन्होंने मुसीबत में डाल दिया। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये हाउस अच्छे तरीके से चले, कानून के मुताबिक चले, असूलों के मुताबिक चले, पार्लिमानी प्रैक्टिस के मुताबिक चले, लेकिन ये नहीं चलने देते ये वज़रा, क्योंकि ना इनके पास तजर्बा है और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साजी करेंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ। और जब हम जवाब मांगते हैं हम ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें, हैं तो आप भी जवाब दें, लेकिन शायद इनको समझ लगी है कि अब अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ नहीं, तो ये उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, ये उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मुल्क में महंगाई है या नहीं? किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना, हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से। अरे भाई चलो, अगर हमारी वजह से है तो इस पर बहस करो ना। आपने 3.5 साल जाया कर दिए इसी तरह ताने देकर, इल्जामात लगाकर, और प्रैक्टिकली अमलन जनाब स्पीकर हकीकत यह है कि यह हुकूमत हर महाज पर फेल हुई है। और ये जो मजाक कर रहे हैं ना इस पार्लियामान के साथ, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं, उसकी तौकीर में इजाफा नहीं बल्कि उसकी जो है बेइज्जती करने चाहते हैं ये लोग। तो मैं इनको वार्न करता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप उनके हत्थे चढ़ेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे दिखाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जनाब स्पीकर, आपसे मेरी ये गुजारिश, आप में बड़ा तहम्मुल है, आप पहले भी स्पीकर रहे, जब ये बेशक शोर करती रही हुकूमत, यहाँ स्पीकर आपके पहले भी थे, हुकूमत वो कहती है हमेशा कि आप बुलडोज कर दो, जल्दी कर दो, ये पहले सोए रहते हैं, इनको कोई पता नहीं होता कि इनके कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो गए। फिर जब इनकी आंख खुलती है तो ये आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कभी फेल है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, उसकी मैं समझता हूँ इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज अगर मेम्बरान कोई ये अगर तहरीक नाकाम भी होती है जनाब वाला, वो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कमी करती है। जिस स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आती है तो ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करो। ये इस तरह के लीडरों को गालियां देकर मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। जब ये नवाज शरीफ को गाली देते हैं, जब ये जरदारी साहब के खिलाफ अर्जासराई करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि इमरान खान को गाली दो। ये है इनकी सियासत। थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले, वो नमाज का टाइम भी हमारा जी। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट कमेंट्स। जनाब आप नमनासिब ना कर प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3.5 साल में तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ,
गैस की राजा साहब प्लीज लास्ट। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी आज की कार्रवाई होगी है इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको आप वापस ले लें और नए सिरे से दोनों तरफ से बातें सुने, हमारे आर्गूमेंट भी सुने, इनके आर्गूमेंट भी सुने। अगर आपका ज़हन ये कहे कि हाँ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये जुल्म ढाना जायज़ है, पाकिस्तान के तबाह हाल अवाम को मज़ीद तबाह करना जायज़ है, तो फिर आप कानून साजी कराएं, वरना मेहरबानी करके ये वापस लें सारी कार्रवाई। जी असद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे आज की कार्रवाई पर भी और इससे कबल जो पिछला सेशन था उसमें भी आखिरी दिन जिस तरह आपकी कुर्सी का किरदार रहा, मैं उस हवाले से भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं आपकी क्या मजबूरी है कि आप ऐवान को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता और न मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन जहाँ पर फ़राइज़ मनसबी का सवाल है, आपसे भी, हम सब से भी, हुकूमत के मेंबरान से भी, तो कम से कम जो उसूल हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, जो आइन है, इस मुल्क का आइन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का आइन, इस मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ का आइन, अवाम का आइन, कम से कम उस आइन को के ज़ाब्ते का तो ख्याल कर लिया करे। इस तरह बाहर से माशी पॉलिसियाँ और उस पर इक़दामात करना हुकूमत की, आपकी हुकूमत ने इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन व अमान भी तबाह हुआ आपकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई कौम अपनी रियासत के साथ सबसे ज़्यादा वफ़ादार है तो मैंने इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा वफ़ादार इस रियासत के साथ किसी को नहीं देखा कि जिसके लिए आप इस किस्म की पॉलिसियाँ लाते हैं और वो फिर भी अवाम रियासत के साथ खड़ी है। वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी खारजा पॉलिसियों की वजह से, वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से। आज जो जुल्म और बर्बरियत आप कौम पर दोबारा मुसल्लत कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, आपने कहा था कि हमने बजट में कोई अवाम पर टैक्सेस नहीं लगाए, आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? और हम सवाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर आपसे कि ऑर्डिनेंसेस आपने लाए हैं, आपने जो रूलिंग दी है वो आइन के साथ मुतसादिम है, वो आइन के खिलाफ है, आप उस पर जवाब नहीं देते। और यहाँ पर एक मेंबर कौमी असम्बली जो हुकूमत का की तरफ से जवाब दे रहा है, वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ वो ज़बरदस्त हैं। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? आपके बाद दूसरे वज़ीर को इस वजारत से क्यों हटाया गया? क्या मजबूरी थी? अगर पिछली हुकूमतों का कसूर था तो आपकी वजारतों में तब्दीलियाँ क्यों लाई जा रही हैं और क्यों लाई गई हैं? आज हम आवाम के हुकूक की बात करते हैं, उन हुकूक के जो आइन ने उनको दिया है, जो कानून ने उनको दिया है, लेकिन आप अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खुद बताएं कि आपके IMF के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर हम IMF के पास जाएंगे। आज आप अपने
اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے۔ آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سینٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے؟ ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں، ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے، آپ نے قانون سازی کی۔ ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ جس طرح آپ یونین کونسل، جس طرح آپ ولیج کونسل، جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں، خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دیں۔ یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دیں۔ جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن جو طریقہ کار اور ضابطہ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بی میڈ، اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا، ایجنڈے کو جاری رکھا، اور کاؤنٹ بی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی جس طرح میرا آپ نے۔ کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ ہولڈ آن۔ نمبر 1 یہ کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے، میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، رولز کے مطابق کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے، کوئی کام ایسا نہیں کیا ہے۔ میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، کے پی کے اسپیکر تشریف لائے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ جناب اسپیکر، آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی، آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا، ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ آپ نے رولنگ دی ہے، آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی۔ تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا، لیکن اس حوالے سے بھی